Hello friends, I am Aryan Mehra. I have secured All India rank 152 in IIT JAM Physics exam this year. In this video, I will share my interview experience at Indian Institute of Science, Education and Research. I have given interviews at either Pune, Kolkata and Tirupati. I will share my experience at either Pune and at either Kolkata. Also, I will give you the tips that how to prepare for the interviews. When you are going for some interviews at IISERs or anywhere else, how you should prepare for those interviews and what they are going to ask you. So let's begin. So students, based on the JAM result for the interview for the integrated PhD physics. Now some students don't know, for their information let me tell you, IISERs, there are about 7 IISERs in India. They offer integrated PhD. Integrated PhD means MS. They call students based on the JAM result for the interview. And then they take the interview and select the final candidates. So IISER Pune take 2 interviews. One is screening interview and then they take the final interview. This year IISER Pune called total 210 students. They called some students based on JAM result and some students based on JEST result. And this interview was conducted on 18th June. Then they selected 70 students in the screening interview. Then they did the final interview of those 70 students after 2 days and at last they selected 14 students. Similarly, IISER Kolkata also called students up to rank 200. They called about 108 students and they took only one interview and selected only 5 students. I was selected in these 5 students. Now, Tirupati called only 5 students. I was selected in these 5 students. Now, Tirupati called the students up to rank 250 and they called only 55 students and the results are not out yet. Now, Mohali takes only students up to rank 101 in the JAM. So I was not rank 101 in the JAM. So I was not called for the interview, so I don't know about it. So let's begin and I will share some of the questions which they asked me in the interview. You have to give interview on the Skype or Google Meet. Usually they take the interview offline on their campuses. So my interview was conducted on Skype, which was first interview, IISER Pune screening interview. So I gave them my Skype ID. They asked me to wait at least 20 minutes before the interview. Finally, they called me and I joined the interview and there were 3 teachers in the panel and the interview was about 35 minutes long. So initially they asked me, Aryan, tell us about yourself. So I told them about my degree, about my year of education, then marks and my favorite subjects. So my first tip is please mention your favorite subjects. और आपके फेवरेट सब्जेक्ट वो होने चाहिए जिनको आपने बीएससी में अच्छे से पढ़ा है. और ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू कॉल आया, आपने 15 दिन कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और उसको आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोल दिया. नो, जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए, आपने 3 साल जो भी बीएससी में बेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी आप सबसे ज़्यादा तैयारी करो और कम से कम 2-3 सब्जेक्ट ऐसे तैयार कर लो विच यू कैन कॉल योर फेवरेट सब्जेक्ट्स. सो आई टोल्ड देम माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड क्वांटम मैकेनिक्स. सो स्ट्रेट अवे फर्स्ट टीचर टुक द क्वांटम मैकेनिक्स. उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स चूज कर लिया और मेरे से क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए. तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा, व्हाट इज द वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल इज a e⁻⁴kx. सो मैंने उनको स्ट्रेट अवे आंसर दे दिया. उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फंक्शन सो दैट वी कैन कॉल इट वेव फंक्शन. So we all know there are 4 or 5 conditions for any function to be a wave function. One is it should be bounded, it should be continuous everywhere, it should be single valued and its derivative must be continuous.
तो मैंने ये चारों उनको बता दिए। देन उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझसे क्वेश्चन पूछा, वाई द डेरिवेटिव मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। तो मैंने उनको कहा कि मैंने उनको आंसर देना स्टार्ट कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा था। सो मैंने उनको स्क्रीनर वेव इक्वेशन एक्सेट्रा बातें बोलनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट आंसर, आप हमें बताओ। उन्होंने मुझे हिंट दिया, आप हमें बताओ कि मोमेंटम रिप्रेजेंट क्या करता है, d∅/dx क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने उनको बोला कि d∅/dx मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर में ये आता है। हमें पता है मोमेंटम ऑपरेटर होता है h कट कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स। सो जो डेरिवेटिव है वो मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इसका कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, क्योंकि मोमेंटम मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। तो फिर मैंने उनको आगे से क्वेश्चन किया कि मैंने कहा सर, अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो फिर इन्फिनाइट वेल की बाउंड्रीज के ऊपर वो कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होता। सो अगर आप कि एट द बाउंड्रीज जो डेरिवेटिव है वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो उन्होंने मुझे इसका आंसर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आप इसका आंसर दो। तो मैंने आंसर देने की बड़ी कोशिश की, आई ट्राइड टू आंसर, बट उनको पता था कि अगर मैंने ही क्वेश्चन पूछा तो मुझे इसका आंसर नहीं पता होगा। तो फिर उन्होंने मुझे आंसर दिया, डेरिवेटिव कैन टॉलरेट द डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो देन उन्होंने मुझे पूछा, उस टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या आपको डेल्टा फंक्शन के बारे में पता है। तो मैंने उनको कहा नहीं सर, मैंने डेल्टा फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है। वो कहते कोई बात नहीं, हम आपको एक डेल्टा फंक्शन का सोल्यूशन देते हैं, आप उसको प्लॉट करते हैं। हम आपको एक डेल्टा फंक्शन का सोल्यूशन देते हैं, आप उसको प्लॉट करना। तो मैंने कहा ठीक है सर। देन ही गेव मी द सोल्यूशन दैट फाई इक्वल्स टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस मॉड एक्स। तो मेरे को इसको प्लॉट करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड कर लिया एक्स लेस देन 0 और एक्स मोर देन 0 के लिए, और मेरे को ई रेज़्ड पर माइनस एक्स और ई रेज़्ड पर एक्स मिल गए। अब मुझे आपको पता है कि ई रेज़्ड पर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो मैंने ये ग्राफ बना दिया। तो उन्होंने कहा यस द ग्राफ इज वेरी एक्यूरेट। तो फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप प्लॉट करो 1 माइनस मॉड एक्स। फिर मैंने 1 माइनस मॉड एक्स को भी ऐसा बनाया और उसको भी मैंने प्लॉट कर दिया। यू कैन इजीली प्लॉट 1 माइनस मॉड एक्स। ऐसा नहीं है कि आपको क्विकली प्लॉट करना है, आप अपना टाइम लो। मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लिया, आराम से सोचा। वो सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लिया, आराम से सोचा। वो आपको टाइम देते हैं सोचने के लिए, आप सोचो, आराम से ग्राफ बनाओ। अगर आपसे कोई गलती भी हो रही है ग्राफ में तो वो आपको एक्यूरेट, आपको सही करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ थोड़ा सा गलत बना दिया था, उन्होंने कहा कि आप चेक करो, इमीडिएटली ठीक कर लिया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इज इट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, क्या 1 माइनस मॉड x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है। तो मैंने कहा यस सर इट इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है एकदम कंटिन्यूस सा दिखाई दे रहा है, कि क्या इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। तो मैंने जब डेरिवेटिव आप इसका निकाल देंगे तो वो आपका कंटिन्यूस नहीं आएगा। तो मैंने उनको बोला नहीं। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि आप क्वांटम मैकेनिक्स से वो स्टार्ट हुए, और लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी फंक्शंस आ रहे थे उनको प्लॉट करवा रहे थे आपसे। चाहे आपने टॉपिक पढ़ा है चाहे नहीं, थे प्लॉट करने के लिए एक फिजिक्स स्टूडेंट को ग्राफ प्लॉट करना जरूर आना चाहिए। तो आप जब भी बीएससी में या जैम की तैयारी कर रहे हैं या जेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में ग्राफ की प्लॉटिंग के ऊपर जरूर ज़्यादा ध्यान दें, वो आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प करें। ये था सभी क्वेश्चन जो मेरे से पहले टीचर ने पूछे। देन सेकेंड टीचर आ गए बीच में। अब सेकेंड टीचर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सो he asked me first question that consider a charged sphere rotating about its axis with angular speed omega, what is the angular momentum। तो आप देखो कि मैंने आप दो सब्जेक्ट बोले थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वांटम मैकेनिक्स पहले टीचर ने पकड़, दो सब्जेक्ट बोले थे क्वांटम मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वांटम मैकेनिक्स पहले टीचर ने पकड़ लिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दूसरे टीचर ने पकड़ लिया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि एक चार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, वो घूम रहा है ओमेगा से, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब सबको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है m r² ओमेगा। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा करंट क्या होगा। फिर मैंने करंट निकालना स्टार्ट कर दिया, चार्ज पर यूनिट टाइम।
टाइम पीरियड निकाला 2πr/v 2π/ओमेगा और करंट बता दिया कि ओमेगा क्यूब बाय 2π। तो उनको बता दिया, कहते हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने उसके आगे क्वेश्चन पूछा कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। अगर तुम अब स्फीयर की जगह सर्कुलर रिंग अज्यूम कर लो तो फिर तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इनटू एरिया। तो आप करंट से सर्कुलर का एरिया अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाय 2। तो मैंने उनको बता दिया, कहते हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देन ही आस्क्ड मी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कि मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम जो आपने निकालना है इसकी रेशो क्या होगी। तो उसकी अगर आप रेशो करोगे तो वो आएगा Q/2 है। वो अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करोगे ना, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में या स्पेक्ट्रोस्कोपी में एंगुलर मोमेंटम m/l की रेशो अगर तुम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो वो जो आती है वो क्या आती है। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता वो क्या आती है। कहता है कि आपने क्या कभी गायरोमैग्नेटिक में क्यों, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होती है वो। तो वो कहते हैं कि वही रेशो होती है गायरोमैग्नेटिक रेशो, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये Q/m आती है, Q/2m नहीं आती। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज स्फीयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर चार्ज स्फीयर होता तो आंसर Q/2m आता, लेकिन आंसर जो है वो Q/m आ रहा है एक्सपेरिमेंटली। तो मैंने कहा ओके सर ओके। तो जहां पे भी आप नहीं कर पा रहे वो आपको हिंट देंगे, लेकिन वो देखते हैं कि क्या आप अननोन क्वेश्चंस को करने की एबिलिटी रखते हो, क्या आप में फिजिक्स की नॉलेज है। देन ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन दैट इफ टू चार्जेस आर मूविंग, मतलब कि उन्होंने मुझे कहा कि दो चार्जेस मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, अब वो दोनों इलेक्ट्रिकल रिपल्शन करेंगे बिकॉज वो दोनों सेम चार्जेस हैं। लेकिन अगर तुम देखो मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उनके बीच में अट्रैक्टिव होगा। तो अब मुझे उन टीचर ने पूछा कि आप बताओ कि कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक कि इलेक्ट्रिक। तो मैंने कहा स्ट्रेट अवे आंसर दे दिया, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता था। मैंने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होगी, और मुझे इसका आंसर पता था। मैंने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होगी, और जब स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगी। सो ये जो क्वेश्चन है वो ग्रिफिथ्स का क्वेश्चन है। अगर आपने ग्रिफिथ अच्छे से पढ़ी है तो ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है ग्रिफिथ की। आंसर स्ट्रेट अवे दे दिया और उन्होंने कहा यस इट इज करेक्ट। और मेरे से दूसरे टीचर ने भी क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, और अब थर्ड टीचर आ गए। अब थर्ड टीचर ने अलग ही मैकेनिक्स का क्वेश्चन पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक बॉल है और तुमने उसको स्टेयर से नीचे थ्रो किया। सो आप यहाँ पे डायग्राम दे सकते हो, ऐसे उन्होंने मुझे डायग्राम बना के दिखाई थी। वो कहते कि अब इसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी को प्लॉट करो। तो मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो स्ट्रेट अवे प्लॉट कर दी। मैंने कहा क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कोई एक्सेलरेशन ना होने की वजह से, कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम। लेकिन वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन लग रही है, सो वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी टाइम। क्यों? काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। तो अगर आप उसको केयरफुली ग्राफ को ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे, तो आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो उन्होंने कहा यस दिस इज राइट ग्राफ, बिल्कुल सही ग्राफ है आपका। फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि क्या आप द वेलोसिटी को मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर को ओनली लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, मतलब कि हमें पता है कि हमारे अराउंड जो गैस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी भी है, वाई के लॉन्ग भी है और जेड के लॉन्ग भी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ एक्स के लॉन्ग प्लॉट करो। तो हमें पता है कि अगर हम सिर्फ कुछ ग्राफ, लेकिन ये आंसर नहीं था। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता और कोई ग्राफ कि कैसा ग्राफ है। तो कहते चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो इतने ही क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे, और मुझे उन्होंने वो 70 स्टूडेंट्स में सिलेक्ट कर लिया था। स्क्रीनिंग इंटरव्यू में मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था। तो ये था मेरा आइजर पुणे की स्क्रीनिंग इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। फिर 2 दिन के बाद मेरी
फाइनल इंटरव्यू हुई। सो वो भी स्काइप पे हुई, उसमें भी 3 टीचर्स थे और वो इंटरव्यू मेरी थोड़ी सी कम चली, सिर्फ 28 मिनट्स तक चली क्योंकि वो मेरी इंटरव्यू इतनी अच्छी नहीं गई थी। तो उसमें मैंने 3 सब्जेक्ट्स अपने फेवरेट बताए थे। वन वॉज क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। तो पहले टीचर ने सबसे पहले ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मेरे से पूछने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने मुझे पूछा कि आपने लेटेस्ट ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा है। मैंने कहा सर मैंने लेटेस्ट ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन पढ़ी है। वो कहते ठीक है। तो कहते बताओ वेव प्लेट्स क्या होती है। तो मैंने बताया वेव प्लेट्स क्या होती है कि ये जो है 2 वेव को, वन इज इमर्जेंट रे, अदर इज ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रे में डिवाइड कर देती है। दोनों की स्पीड्स अलग अलग होती हैं, जिस वजह से उन दोनों में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमें पता है वेव प्लेट्स जो है फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। λ/2 और λ/4 की वाई दे प्रोड्यूस फेज डिफरेंस। तो मैंने जैसे आंसर उनको बताया था मैंने दोबारा रिपीट किया। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज फेज डिफरेंस आ जाता है। तो उन्होंने फिर पूछा हाउ द वेव प्लेट्स वर्क, मतलब वो कहना चाहते थे कि कैसे वो 2 वेव्स में डिवाइड करता है। तो मैंने कहा कि वो डबल रिफ्रैक्टेड लाइट्स होते हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा यस सर मैंने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा। तो वो कहते कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या फ़र्क है। तो अब हम सबको पता है कि इनमें क्या क्या फ़र्क होता है। इनमें फ़र्क होता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न रहता है, इंटेंसिटी उसकी चेंज नहीं होती, लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो मैंने उनको ये बता दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उनको आंसर दिया कि ऐसा मुझे पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उनको आंसर दिया कि ऐसा इंटरफेरेंस फेज डिफरेंसेस की वजह से होता है और जो डिफ्रैक्शन है वो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो ऐसा मैंने उनको आंसर दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कोई ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन बताओ जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन कर सके। तो मैंने उनको बोला कि वो होगा साइन एक्स बाय एक्स। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक, साइन एक्स बाय एक्स इज द राइट आंसर। देन सेकंड टीचर ने मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगी। तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर जाती है, लेकिन कंडक्टर में से नहीं करती। और ऑल्सो कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पैरेलल। आपको पता है कि ऐसे ऐसे मैंने दोनों डायग्राम्स बना के उनको दिखा दिए। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने रिलेटिविटी पढ़ी है। मैंने कहा सर यस मैंने रिलेटिविटी पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने सिंपल सा रिलेशन बता दिया, E=√P0c²। कहते ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर हम स्पीड बहुत स्लो मान ले, लेट्स अज्यूम कि पार्टिकल की स्पीड बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से, तो क्या ये फॉर्मूला क्लासिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने कहा यस सर बिल्कुल बन जाएगा। तो वो कहते हैं बना कर दिखाओ। तो मैंने डेरिवेशन करनी, तो वो कहते हैं बना कर दिखाओ। तो मैंने डेरिवेशन करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन मेरे से डेरिवेशन हुई नहीं, मेरे से वो प्रूव नहीं हो पाया, इसलिए मेरी ये इंटरव्यू इतनी अच्छी नहीं गई थी। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या होता है। सो कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल मैंने उनको बता दिया कि क्या होता है कि अगर क्वांटम नंबर n इंफिनिटी को अप्रोच करे तो हमारी क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स को अप्रोच करती है। तो वो कहते हैं यस इट इज अ करेक्ट आंसर। फिर उन्होंने मुझे एक और क्वेश्चन पूछा कि डिड यू स्टडी द लेजर फिजिक्स। तो मैंने कहा सर तो कहते हैं चलो ठीक है नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। फिर मेरे से नेक्स्ट टीचर ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कुछ दो ही क्वेश्चन पूछे, सिर्फ 2-3। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कार्नोट साइकिल क्या होता है। तो कार्नोट साइकिल हम सबको पता है क्या होता है, ये एक हीट इंजन है जो कि, और वो कहते हैं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम की होती है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम है,
इससे ज़्यादा एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। तो मैंने कई आंसर दिए उसके। मैंने बोला कि सर ये तो हम इसमें डिसिपेशन फोर्सेस को अज्यूम नहीं करते, हम मानते हैं कि ये नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं होती। वो कहते कि हाँ लेकिन एग्जैक्टली तुम इसको कैसे डिफाइन करो, कैसे बताओगे। तो मैं उसको कर नहीं पाया। मैंने एक दो आंसर तो दिए लेकिन वो जो ढूंढ रहे थे वो मैं उनको नहीं बता पाया। उन्होंने कहा कि इसका आंसर है क्योंकि वो रिवर्सिबल साइकिल है, कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल होती, मतलब कि आप उसको कितनी भी बार चला लो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसके ऊपर हमारी काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई, 5-6 मिनट की बात हुई और एंड में उन्होंने मुझे आंसर बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि tan h x का आखिरी क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ बनाओ। मुझे पूछा कि tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ बनाओ। तो मेरे को बिल्कुल इसका ग्राफ याद नहीं था। मैंने कहा सर मुझे नहीं आता। तो कहते ठीक है। सो मेरी इंटरव्यू इतनी अच्छी नहीं गई थी, इसलिए मेरी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है। तो इसके बाद मुझे मतलब 10 से 15 दिन का ब्रेक तो इसके बाद मुझे मतलब 10 से 15 दिन का ब्रेक मिल गया था अगली इंटरव्यू से पहले। अगली इंटरव्यू मेरी थी आइजर कोलकाता। तो अब यहाँ पे मैं कुछ हिंट आपको टिप्स दूंगा ताकि आपकी इंटरव्यू अच्छी, आप इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल आ रही है या आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बेनिफिट हो। सो सबसे पहले तो यह है कि जो आप उन 10 से 15 दिनों में पढ़ोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा नहीं होगा। जो आपने बीएससी में पढ़ाई की है वही आपको हेल्प करेगी। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, जैसे कि अलग अलग चीज़ें मैंने पढ़ी, रिवाइज की, लेकिन जो मुझे अच्छे से आता था। सेकंड चीज़ इज, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसके लिए कोई भी एक कंसेप्चुअल बुक यूज़ करो, उस सब्जेक्ट की बेस्ट बुक यूज़ करो और उस बुक में चाहे आप डेरिवेशंस करो या ना करो लेकिन थ्योरी के ऊपर जरूर ध्यान रखो। और जो भी ग्राफ्स आप देख रहे हो उन ग्राफ्स को आप अच्छे से देखो, उनको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। एक डेरिवेशन में जो भी अजम्पशंस यूज होती हैं उसको ऊपर ध्यान रखो। जैसे कार्नोट साइकिल की हमने बात की, कितना बेसिक क्वेश्चन था। हम स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेते हैं इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हम स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेते हैं इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो अजम्पशंस है उनको आप ध्यान में रखो और कोशिश करो कि 2 से 3 सब्जेक्ट आपने बुक से पढ़े हो, अच्छी अच्छी सी किताब से आपने पढ़े हो। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने ग्रिफिथ से पढ़ा हो और थर्मल फिजिक्स आपने गर्ग बंसल घोष से पढ़ी हो, या और थर्मल फिजिक्स आपने गर्ग बंसल घोष से पढ़ी हो, या क्लासिकल मैकेनिक्स आपने कोई अच्छी किताब से पढ़ी हो। तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट बनाओ 2 से 3 जो कि आपको अच्छे से आते हो, वो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अपनी बेसिक फिजिक्स को समझने की क्षमता को बढ़ाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट इंटरव्यू थी 15 दिन के बाद। अबाउट 6 जुलाई को मेरी ये इंटरव्यू थी। नो सॉरी, 29 जून को मेरी ये इंटरव्यू थी आइजर कोलकाता में। सो आइजर कोलकाता की मेरी इंटरव्यू बहुत ही अच्छी गई थी। मतलब उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस का आंसर उनको दिया था और मेरी इसमें सिलेक्शन भी हो गई। उन्होंने 108 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू ली उन्होंने और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की थी उन्होंने और मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई। सो बाय लक, और इंटरव्यू भी अच्छा गया था इसलिए हो गई। सो मेरी इंटरव्यू ये गूगल मीट के ऊपर हुई और इसमें 5 टीचर्स थे। 5 टीचर्स ने ये इंटरव्यू ली मेरी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप जो भी है आप पेन और पेपर के ऊपर अपने कैमरा को फोकस कर दो और ताकि हम आपके वर्क को देख सकें आप क्या कर रहे हो। ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो। ठीक है। सो उन्होंने ये इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि 30 मिनट तक चलेगी, लेकिन मेरी जो इंटरव्यू है वो 40-45 मिनट्स तक चली थी क्योंकि वो इंटरव्यू काफ़ी अच्छी गई थी मेरी। तो आते ही मुझे उन्होंने पूछा कि आर एन व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो मैंने फिर से उनको बोल दिया कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स। तो लेकिन उन्होंने मेरे से क्वेश्चन जो है ग्राफ के ऊपर पूछा सबसे पहला। तो उन्होंने कहा कि बताओ x/1 + x² का ग्राफ कैसा होगा। तो आप देख सकते हो ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है। आपकी इंटरव्यू स्टार्ट ही ग्राफ से हो रही है और अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं काफ़ी आपको नुकसान होगा। तो मैंने ये ग्राफ बनाना कैसे बनाया, मैंने x को नीचे डिवाइड कर दिया।
तो मेरा आंसर आ गया 1/x प्लस एक्स। सो अगर आप इन्फिनिटी पे देखेंगे तो ये ज़ीरो हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे ऐसा ही काम किया था कि वो ज़ीरो हो रहा है। और फिर मैंने देखा कि इसमें एक मैक्सिमा भी होगा, ज़ीरो हो रहा है। और फिर मैंने देखा कि इसमें एक मैक्सिमा भी होगा। अगर आप देखें इनिशियली वैल्यू इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। तो मैंने ये ग्राफ बना दिया। तो उन्होंने कहा यस ये बिल्कुल सही ग्राफ है। फिर उन्होंने मुझे पूछा भी कि ये ग्राफ आपने कैसे बनाया। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने ये ग्राफ कैसे बनाया। कहते कैसे बनाया। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने ये ग्राफ कैसे बनाया। कहते ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि ये जो फंक्शन हमने आपको दिया है ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो मैंने कहा सर ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर आप माइनस ऑफ एक्स देखेंगे तो ये माइनस फंक्शन जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा। तो कहते बिल्कुल ठीक है। जो मैक्सिमज आपने बनाए हैं वो किस पॉइंट के ऊपर आएंगे। तो आपको पता है आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करो, डी फाइव बाई डी एक्स करो डी, और आप अपने मैक्सिमस के पॉइंट निकाल सकते हो। तो मैंने उनको बताया कि ये पॉइंट जो आ रहे हैं प्लस माइनस वन के ऊपर आ रहे हैं। कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें ऐसा था कि पांचों टीचर पूछेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे आइजर पुणे में हुआ था। इसमें सभी टीचर्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो उसके बाद एक और टीचर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप कोई भी चार्ज स्फीयर ले लो। मैंने कहा ठीक है सर। तो वो कहते कि आप बताओ कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस कैसे होगी। अगर आपने चार्ज स्फीयर पढ़ा है, हमने इसको प्लस टू में भी पढ़ा, बीएससी में भी हम काफ़ी बार इसको पढ़ते हैं, गॉस लॉ में यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा या आप ड्राइव भी कर सकते हो कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, और आउटसाइड इट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप देखो आपकी बेसिक नॉलेज आपके कितने काम आ रही है। आपसे क्वेश्चन वो काफ़ी बेसिक पूछेंगे। सो इसलिए अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज के ऊपर ध्यान, मुश्किल बुक में पढ़ने, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए ग्रिफिथ पढ़ी है, सो दैट इज मोर देन इनफ। फिर उन्होंने पूछा कंसीडर यू मेड कैविटी इनसाइड अ स्फीयर। तो एक स्फीयर के अंदर आपने कैविटी बना दी, तो वो कहते हैं कि उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अब आप गॉस लॉ को यूज करो, बहुत सिंपल यूज करो, बहुत सिंपल है। अगर मैं गॉस लॉ यूज करूँ तो इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, तो अगर चार्ज इंक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो मैंने कहा सर जीरो। तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक, करेक्ट आंसर। फिर उन्होंने मुझे पूछा, एक नेक्स्ट टीचर ने मुझसे पूछा कि आर्यन नाउ टेल अस कि सेंट्रल पोटेंशियल क्या होता है। सेंट्रल पोटेंशियल अगर आप समझे तो सेंट्रल पोटेंशियल मीन्स जो सेंट्रल फोर्सेस जो होती हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था ये, उसमें जो पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पोटेंशियल। वो कहते हैं कि प्रूव करो कि अगर आपका मोशन सेंट्रल फोर्स के अंदर है तो वो मोशन प्लेनर होगा, मतलब कि बॉडी प्लेन में मूव करेगी। तो मैंने उसको प्रूव कर दिया सिंपल मेथड से, जो कि मैंने मैकेनिक्स में पढ़ा था, कि मैंने एंगुलर मोमेंटम लिया और मैंने बोला कि एम वी, और आर और वी जो है आपस में एक ही सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए वो जीरो आ जाता है। अगर आप इसकी सिंपल सी डेरिवेशन किसी भी बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो मैंने वो डेरिवेशन कर दी। तो मेरी इंटरव्यू काफ़ी अच्छी चल रही थी, मेरे को सब क्वेश्चंस का आंसर आ रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है वेरी गुड आ रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है वेरी गुड। फिर उन्होंने पूछा कि आप लेग्रेंजियन बनाओ, इसका मतलब लेग्रेंजियन लिख के दिखाओ कोई भी पार्टिकल का सेंट्रल फोर्स में। तो आप देख रहे हो कैसे वो बातों को कनेक्ट करते हैं। तो वो लेग्रेंजियन के ऊपर चले गए। क्वेश्चन वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते लेकिन बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो उनका वाइड, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते लेकिन बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो उनका वाइड वाइड एरिया होता है, कहीं से भी उठा लेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट अवे बोल दो कि सर मेरे को नहीं आता है, या और फिर अगर वो हिंट दें तो उस हिंट को कैप्चर करने की कोशिश करो। लेकिन अगर फिर भी तुमको नहीं समझ आ रहा, आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तो उनको बोल दो कि सर सॉरी वी डोंट नो दिस, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो वो आपको अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना ही उनका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मुझे लेग्रेंजियन आता था, मैंने लेग्रेंजियन लिख दिया हाफ एम बी स्क्वायर माइनस पोटेंशियल कोऑर्डिनेट्स आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर। वो कहते ठीक है।
कहते क्या आप यहाँ से बता सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा? मैंने कहा यस सर, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि थीटा जो है वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो एंगुलर मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेट थीटा विल ऑल्सो मोमेंटम। तो अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा जो जो कोऑर्डिनेट्स साइक्लिक होता है, मतलब कि आपके लैग्रेंजियन में नहीं आता। अब आप देखो तो मेरे लैग्रेंजियन में थीटा नहीं आ रहा, थीटा नॉट आ रहा है लेकिन थीटा नहीं आ रहा। सो मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा वो होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर टू थीटा वो होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो वो बहुत इंप्रेस हुए कि मैंने इसका आंसर स्ट्रेट अवे दे दिया, क्योंकि मैंने अब तक सारे आंसर उनको स्ट्रेट अवे दे दिए थे बिना किसी भी प्रॉब्लम के। फिर मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आप किसी भी फील्ड का कर्ल आप किसी भी फील्ड का कर्ल कैसे मेजर करोगे, एयर फील्ड का कर्ल कैसे मेजर करोगे? तो वो काफ़ी सीनियर टीचर थे जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। तो वो कहते कि अगर आपकी हवा है, आपके आसपास हवा है, उसमें अगर वो हवा कर्ल कर रही है, यानी कि रोटेट कर रही है एक तरह से, रोटेट कर रही है एक तरह से, तो आप कैसे मेजर करोगे? तो ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन था। तो मैंने कहा सर आई विल यूज डस्ट। तो वो कहते नहीं, डस्ट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, वो आपकी आंखों में जा सकती है, आप देख नहीं पाओगे। तो मैंने कहा सर मैं रुई ले लूँगा, या फिर फोम ले लूँगा, या फिर फर ले निकल्स लोगे। मैं कहा यस सर, आई विल टेक द लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स। तो कहते बिल्कुल ठीक। तो वो कहते कि अब बताओ कि मैथमेटिक्स में ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो कि कहती है कि कर्ल मीन्स रोटेशन। हमको पढ़ा दिया जाता है कि कर्ल जो होता है वो रोटेशन होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि प्रूव करती है कि कर्ल जो है वो रोटेशन। अब मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे हिट किया कि ये स्टोक्स लॉ हो सकता है। तो मैंने स्टोक्स लॉ लिख दिया। मैंने कहा सर स्टोक्स लॉ। तो वो कहते हैं यस एग्जैक्टली, स्टोक्स लॉ ही वो इक्वेशन है जो कि प्रूव करती है। तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो गया इंटरव्यू में ये इस क्वेश्चन के बाद। उन्होंने उसके बाद पूछा कि आपने कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में सुना है? मैं कहा यस सर। तो कहते बताओ कंजर्वेटिव फील्ड की कंडीशन क्या होती है? मैं कहा सर ये होती है कि उसका कर्ल जो है वो जीरो। फील्ड की कंडीशन क्या होती है? मैं कहा सर ये होती है कि उसका कर्ल जो है वो जीरो होना चाहिए। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कहते कोई भी फील्ड दो जो कि कंजर्वेटिव है और उसको चेक करो। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दी, छोटा सा फंक्शन लिख दिया, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा फंक्शन लिखा था, और मैंने उसको चेक भी कर दिया तो वो आ गया। आप कर दिया तो वो आ गया। आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हो जो कि कंजर्वेटिव है, वो काफी सिंपल काम है जिसका कर्ल जीरो हो। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप अज्यूम करो कि मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा गया है विद इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस से लो, तो आपकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी? तो मैंने स्ट्रेट अवे ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर दी। अगर आपको पता हो तो ये आईआईटी जैम के सिलेबस में भी है। तो ये ट्रैजेक्टरी आती है। ये ट्रैजेक्टरी क्यों आती है आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको स्ट्रेट लेकर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अलोंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। जो परपेंडिकुलर है वहां पे फोर्स लगेगी और वो कोशिश करेगा कि सर्कुलर हो जाए मोशन, इसलिए सर्कुलर हो जाता है और एक कंपोनेंट आगे जाता रहता है, इसलिए ऐसी ट्रैजेक्टरी बनती है। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग जैसी ये ट्रैजेक्टरी होती है। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, दे वर इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कि इसका रेडियस क्या होगा? तो मैंने रेडियस निकाल दिया। मैंने मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल किया सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वहां से रेडियस आ गया एम वी बाई क्यू। तो वो कहते हैं कि अब क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत सोच समझ के देना कि v क्या है। तो अब उन्होंने वेलोसिटी देना कि v क्या है। तो अब उन्होंने वेलोसिटी मुझे y के लॉन्ग भी दी थी, z के लॉन्ग भी दी थी, x के लॉन्ग भी दी थी, लेकिन सर्कुलर मोशन तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कोस कर रहा है, यानी कि y एक्सिस और z एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी ही सर्कुलर मोशन कोस करेगी। तो मैंने कहा कि v होगा अंडर रूट वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड, लेकिन मैंने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स लगाई और ये आंसर दे दिया। वो कहते हैं यस,
वेरी वेरी गुड। और वो उस इंटरव्यू में एक स्पेशल बात क्या थी, वो हर क्वेश्चन के बाद मुझे रिव्यूज़ दे रहे थे, मतलब कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे, नाइस, गुड, वेरी एक्सीलेंट, ऐसा बोल बोल के वो मेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, ऐसा बोल बोल के वो मेरी तारीफ कर रहे थे, जिससे मेरे कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज हो रहा था। फिर उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज रेजोल्यूशन एंड रेले क्राइटेरिया। तो रेजोल्यूशन और रेले क्राइटेरिया के बारे में डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ऑप्टिक्स के ऊपर चले गए। तो मैंने कहा सर, उन्होंने उसके बाद पूछा कि प्रूव दैट इफ इट इज मोर इफ लैम्डा इज मोर, मतलब कि रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि इस डेरिवेशन को तुम स्टार्ट करो, थीटा इक्वल्स टू 1.22 सिंपल सी डेरिवेशन की, और मैंने प्रूव कर दिया कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो उन्होंने कहा यस, यही डेरिवेशन है इसकी। लेकिन ऑल्दो मुझे डेरिवेशन आती नहीं थी, लेकिन मैंने जो भी है सिंपल सी बात जो होती है डिफ्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं, मैंने वही डेरिवेशन कर दी और वही करेक्ट आंसर था। और फिर रैले क्राइटेरिया होता क्या है, मैंने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आंसर दिया और वो दे वर मोर देन सेटिस्फाइड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे एक फंक्शन दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दी 2x जी कैप। उन्होंने कहा कि इसको प्लॉट करो। तो आप देख सकते हो कि ये सिंपल सा प्लॉट, उन्होंने कहा कि इसको प्लॉट करो। तो आप देख सकते हो कि ये सिंपल सा प्लॉट अगर आप करोगे तो आ जाएगा। तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे प्लॉट कर दिया। तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छी चल रही थी, ऑलमोस्ट सभी आंसर्स मैं दे पा रहा था। देन एक टीचर ने उनको बोला, दूसरे टीचर को बोला कि ही इज आंसरिंग ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। सो आस्क टीचर को बोला कि ही इज आंसरिंग ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, सो आस्क हिम समथिंग एक्सपेरिमेंटल। तो कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए इसको बोलो ताकि हम इसकी ओवरऑल नॉलेज को चेक कर सकें। तो मुझे वहाँ पे बैठे एक टीचर ने कहा कि आप ग्रेविटी कैसे मेजर करोगे। तो मैंने उनको बहुत ही इंटरेस्ट बताई कि मैंने कहा मैंने ग्रेविटी अपनी सिस्टर की चोटी से मेजर की। वो कहते हैं वो कैसे। तो मैंने कहा मैंने अपनी सिस्टर की चोटी से पेंडुलम बना लिया और पेंडुलम से मैंने ग्रेविटी मेजर की फ्यू मंथ्स बैक। वो काफ़ी इंप्रेस हुए, कहते हैं ओके ओके, टाइम पीरियड मेजर कर लो, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2π√L/g, और लेंथ भी मेजर कर लो। वो कहते हैं यस करेक्ट। फिर वो कहते हैं कि और तरीके बताओ, और क्या तरीके हो सकते हैं। तो मैंने कहा केटर्स पेंडुलम भी हो सकता है, और भी तरीके जैसे स्प्रिंग से ही आप कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि ये सब ऐसा मेथड बताओ जिसमें ऑसिलेशन यूज ना हो। तो मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, मैं कहा मेरे को अचानक से क्लिक नहीं हुआ, लेकिन मैंने 1 मिनट सोचा। तो मैंने कहा सर वी कैन यूज इंक्लाइन प्लेन, हम इंक्लाइन प्लेन के बारे में इंक्लाइन प्लेन को यूज कर सकते हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है, इंक्लाइन प्लेन को यूज कर सकते हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है, इंक्लाइन प्लेन को यूज कर सकते हैं, कैसे करोगे। तो मैंने कहा मैं कोई भी बॉल लूंगा और उसको इंक्लाइन प्लेन से नीचे फेंकूंगा और टाइम पीरियड मेजर करूंगा उसके नीचे आने का, और फिर मैथमेटिकल एनालिसिस करके ग्रेविटी मेजर कर लूंगा। फिर उन्होंने मुझसे पूरी डेरिवेशन करवाई वहाँ पे उन्होंने कहा कि फाइंड करो कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल क्या होगी डाउनवर्ड्स। मैंने वो एक्सेलरेशन निकाली, तो आंसर आया था 3/5 जी साइन थीटा। लेकिन इसका मतलब कि 3/5 जी साइन थीटा का मतलब होता है कि जी से थोड़ी सी कम एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 3/5 जी मीन्स जी से छोटी एक्सेलरेशन। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा, अगर आपने बॉल फ्री फॉल करवाई और एक बॉल आपने इंक्लाइन प्लेन पे फेंकी लगाएगी नीचे आने के लिए, तो कौन सी सिचुएशन ज़्यादा आइडियल है, कम टाइम वाली कि ज़्यादा टाइम वाली। तो मैंने कहा सर ज़्यादा टाइम वाली आइडियल है, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, हम अपनी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो अच्छे से कर पाएंगे। वो कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन हम यूजुअली फिजिक्स में, तो मैंने कहा सर, कहते इसका कुछ लेना देना अनसर्टनिटी से है। तो मैंने काफ़ी सोचा, तो मैंने कहा सर मे बी बिकॉज अगर आपका एक्सपेरिमेंटल एरर है लेट्स से 1 सेकेंड, अज्यूम कर लो आपका एरर है 1 सेकेंड, और आप अज्यूम कर लो आपका एरर है 1 सेकेंड और आपका टाइम है 40 सेकेंड
टोटल। तो जो रिलेटिव एरर होगा वो काफ़ी कम होगा। लेकिन अगर आपका टाइम है 5 सेकेंड तो वो रिलेटिव एरर जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम टाइम पीरियड ज़्यादा कंसीडर करना पसंद करते हैं। वो कहते हैं यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो वो काफ़ी खुश हुए इस आंसर से। और ऐसे मुझे उन्होंने टोटल 19-20 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनका आंसर दे दिया। एक दो शायद मुझे याद नहीं है क्वेश्चंस। और उन्होंने अल्टीमेटली मुझे लास्ट में पूछा कि आर्यन, क्या आपने और जगहों पे अप्लाई किया है? तो मैंने कहा सर मैंने आइजर पुणे में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं आइजर कोलकाता आना चाहता हूँ। वो कहते क्यों आना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हूँ, मैं कोलकाता आया हुआ हूँ, मेरे पापा का वहाँ पे बिजनेस है। तो वो कहते ओके ओके। 10 और 15 आई थिंक डेज, आफ्टर 15 डेज उनका मेल आया कि दैट यू आर सिलेक्टेड, एंड अल्टीमेटली उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर। ठीक है, सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। नाउ मुझे आइजर कोलकाता में इंटीग्रेटेड पीएचडी का ऑफर आया, एंड आल्सो आई एम गेटिंग इट। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड एमएससी एट एनी आईआईटी और एनी प्लेस एल्स। मैं आपको फ़ायदे, नुकसान, बेनिफिट्स, मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा इन नेक्स्ट वीडियो। एंड हाउ टू मेक डिसीजन बिटवीन इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड एमएससी। मैंने कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके ये डिसीजन लिया, आई विल शेयर विद यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर्यन मेहरा।